As we are reading this, tears are flowing from our eyes. This commentary is from Bill Must and John White. जब हम ये पढ़ रहे हैं, हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये टिप्पणी बिल मस्ट और जॉन वाइट की है कि ओ न्यूज 9 is monumental. It is monumental because what it has done is that it is quieting doubt and concern by many founders. No one is more complimentary than Mr. Ash Mufareh. CEOs don't do that. But Mr. Mufareh is a new age CEO, meaning he is light years ahead of any other CEO that's alive and heading a company. Oh News 9, एक यादगार पल है। यह एक यादगार पल है क्योंकि इसने कई संस्थापकों के संदेह और चिंता को शांत किया है। श्रीयश ऐश मुफारेह से ज्यादा प्रशंसात्मक कोई नहीं है। सीईओ ऐसा नहीं करते, लेकिन श्री मुफारेह एक नए जमाने के सीईओ हैं, यानी वे किसी भी जीवित और कंपनी का नेतृत्व करने वाले सीईओ से कई गुना आगे हैं। He congratulated us on the brief survey because he wanted to get our input. And we founders and affiliates, give yourselves a hand. Give yourselves pats on the back. Because Mr. Mufareh said that the response was truly extraordinary. उन्होंने संक्षिप्त सर्वेक्षण के लिए हमें बधाई दी क्योंकि वे हमारी राय जानना चाहते थे और हम संस्थापकों और सहयोगियों अपना सहयोग दीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि श्री मुफारेह ने कहा कि प्रतिक्रिया वाकई असाधारण थी। He said that our response exceeded our most optimistic projections. Isn't that just the way we feel about Mr. Mufareh and his magnificent elite technology teams? Our response to that survey is a reflection of how we feel about Mr. Mufareh and his family and technology teams. उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिक्रिया हमारे सबसे आशावादी अनुमानों से भी बढ़कर थी। क्या हम श्री मुफारेह और उनकी शानदार तकनीकी टीमों के बारे में ऐसा ही महसूस नहीं करते? उस सर्वेक्षण पर हमारी प्रतिक्रिया इस बात का प्रतिबिंब है कि हम श्री मुफारेह, उनके परिवार और तकनीकी टीमों के बारे में कैसा महसूस करते हैं। Yes, those who answered that survey have just separated themselves and entered that over 90% commitment, 90% of the founders and affiliates. That is unheard of. And Mr. Mufareh said, we couldn't be more impressed or grateful. And what he said after that was, your dedication inspires us every day. हाँ, इस सर्वेक्षण में जिन लोगों ने जवाब दिया, उन्होंने खुद को अलग कर लिया है और 90% से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो गए हैं। प्रतिबद्धता, 90% संस्थापक और सहयोगी, ये तो अनसुना है। और श्री मुफारेह ने कहा, हम इससे ज्यादा प्रभावित या आभारी नहीं हो सकते। और उसके बाद उन्होंने जो कहा वह था, आपका समर्पण हमें हर दिन प्रेरित करता है। मिस्टर मुफारेह, योर लव, योर डिवोशन, your dedication, your never quit attitude inspire all of us more than you would ever know, he says. श्री मुफरेह, आपका प्यार, आपकी भक्ति, आपका समर्पण, आपका कभी हार न मानने वाला रवैया हम सभी को प्रेरित करता है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। वह कहते हैं, Now it's our turn to speak directly to you. What? A CEO of a soon-to-be released mega company wants to speak directly to each one of us, founders and affiliates. He says, we are excited to announce an important event. Wow! अब आपसे सीधे बात करने की हमारी बारी है। क्या? जल्द ही लॉन्च होने वाली एक मेगा कंपनी के सीईओ हम सभी संस्थापकों और सहयोगियों से सीधे बात करना चाहते हैं। वे कहते हैं, हमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। वाह! We have been invited to a magnificent global address, and the featured speaker is none other than Mr. Ash Mufareh. When have you ever heard of a CEO of a company talking about a union address? हमें एक शानदार वैश्विक संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया है और इसके मुख्य वक्ता कोई और नहीं बल्कि श्री अश मुफारेह हैं। आपने कभी किसी कंपनी के सीईओ को यूनियन संबोधन के बारे में बात करते सुना है? In our opinion, a unity address. And it's to get us in tune to what has always been in Mr. Mufareh's heart. And it addresses loyal, dedicated founders and affiliates, but since it will be shown publicly. Curious onlookers, potential customers around the globe. हमारी राय में एकता संबोधन, और यह हमें श्री मुफारेह के दिल में हमेशा से जो रहा है
उससे परिचित कराने के लिए है और यह वफादार, समर्पित संस्थापकों और सहयोगियों को संबोधित है। लेकिन चूंकि इसे सार्वजनिक रूप से दिखाया जाएगा, इसलिए उत्सुक दर्शक और दुनिया भर के संभावित ग्राहक भी इसमें शामिल होंगे। And he's excited to share important information about this transcendent journey immediately ahead of us. और वह हमारे सामने आने वाली इस उत्कृष्ट यात्रा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए उत्साहित हैं। That webinar that is happening Thursday, August 14th at 1:30 p.m. Eastern Standard Time US is the beginning of the wow moment, the first of many milestones of this new company. We don't know the name. वह वेबिनार जो गुरुवार 14 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे पूर्वी मानक समय अमेरिका में हो रहा है, यह एक अद्भुत क्षण की शुरुआत है। इस नई कंपनी के कई मील के पत्थरों में से पहला, हमें नाम नहीं पता, बट इट्स द मोस्ट पावरफुल नो नेम कंपनी दैट्स एवर बीन डिजाइन्ड इन आवर हम्बल ओपिनियन। फ्रेंड्स, वी आर ऑन द कस्प ऑफ कंप्लीटली चेंजिंग द सीन। लेकिन हमारी विनम्र राय में यह अब तक की सबसे शक्तिशाली नामहीन कंपनी है। दोस्तों, हम पूरी तरह से परिदृश्य बदलने की कगार पर हैं। The journey that Mr. Mufare has been leading us, we will finally be able to peek into just a little bit, in our opinion, what Mr. Mufare and his technology teams are designing for us. We will take it bit by bit, because this new company is a giant beast. And how do you eat a giant beast? One bite at a time. श्री मुफरेह जिस सफर पर हमें ले जा रहे हैं, हम आखिरकार अपनी राय में श्री मुफरेह और उनकी तकनीकी टीम हमारे लिए जो डिजाइन कर रही है, उसकी थोड़ी बहुत झलक पाएंगे। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये नई कंपनी एक विशालकाय जानवर है। और आप एक विशालकाय जानवर को कैसे खाते हैं? एक एक निवाला।